जी जी जी, सॉरी, ये कनेक्शन यहाँ पे कैंपस में बार बार ड्रॉप हो रहा है। जी, It's perfectly सो आई एम fine. स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर। जी आप यही इसी स्लाइड से पढ़ाना शुरू कर सकती हैं? जी 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 जी, आई एम स्टार्टिंग द लेक्चर। बार Alright. बार बीच में थोड़ी सी इंटरप्शन हो रही है, यहाँ इंटरनेट थोड़ा सा मेरे ख्याल में डाउन हो रहा है बार बार। सो खैर, आई एम स्टार्टिंग and I'm also recording the lecture, so you can also download the lecture right after the class. क्योंकि फौरन से कर लिएगा, बाद में फिर ये जो lectures हैं ये सारे इरेज हो जाते हैं from Microsoft Teams। ठीक है। So we were studying chapter number 2, and we were studying the strategic planning process. And so far we had discussed the basic steps that are involved in the strategic planning process. And we discussed that there are four major steps in the strategic planning process. Starts defining company's vision statement, then it moves towards setting company's objectives and goals. And after goals and objective setting, then the companies work on their designing business portfolios. And in this designing business portfolio steps, basically there are two major steps going on. Companies first try to look at their current business portfolios in order to understand which product they have to keep in the portfolio and which product they have to phase out from their portfolio. And then they go for future designing of the business portfolio. So in this step, we're going to look at different grids so that we can identify the product in product's position in the business portfolio, and then what the marketeers have to do with their product, what kind of decisions they have to take. Either they have to go for the expansion decision for the product, or they have to phase the product out from their portfolio. So in this designing business portfolio phase, marketeers are basically going through the current analysis of the portfolio, and then they work on designing the future portfolio. Then finally, in the last step, that is planning, marketing, and other functional strategies. In this step, basically, all the planning that has been done in the first three steps, उन सारे steps की जो है basically प्लानिंग हो रही होती है, डिपार्टमेंटल वाइज गोल्स डेवलपमेंट हो रही होती है, इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है, एंड फाइनली द कंट्रोलिंग मेजर्स आर बीइंग टेकन in order to see what was our desired plan and how much we have achieved throughout, right? So these are the four basic steps. We will be discussing all these four steps separately and individually. Firstly, the steps of the company-wide process starts with defining company's vision and the vision statement. This we have also discussed earlier in a few classes. Okay, what do we understand by the term vision and what do we understand by the term mission? ठीक। सो विजन क्या होता है? स्लाइड्स शो नहीं हो रही। ओके। सबको स्लाइड शो नहीं हो रही है? कैन ऑल ऑफ यू सी द स्लाइड्स? मुझे भी नहीं हो रही मैम, स्लाइड्स शो नहीं हो रही। स्लाइड शो नहीं हो रही है? अच्छा, मेरे डिस्प्ले में तो दे आर शोइंग। मे बी थोड़ा सा आप लोगों के यहाँ कनेक्टिविटी का होगा इशू, या मे बी थोड़ी सी 1-2 मिनट लगेंगे टू स्लाइड्स टू अपेयर ऑन द स्क्रीन्स। ठीक, वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर स्लाइड्स आ जाएंगी, डोंट वरी, और मैं आप लोगों के लिए अपलोड भी कर दूंगी इन द टीम्स क्लासरूम। ठीक। So the steps of the company-wide strategic planning process, basically, there are four different steps that we just discussed. Now we're going to look at all these four steps separately. Step number 1 is defining company's vision and the mission statement. ठीक है, जब भी हम अपनी कंपनी की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को हमने क्या डिस्कस किया था? इट इज अबाउट the planning for the long term future of the organization, ठीक है, for the next 20, 30 and 50 years of the organization. So it always starts with the vision statement. ठीक, हम vision को किस तरह define करते हैं? We define vision what an organization wants to be.
एंड मिशन स्टेटमेंट को हम डिफाइन करते हैं. इट बेसिकली डिफाइंस द फंडामेंटल पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, why the organization exists, right? So we need to first the vision statement, and from the vision statement we're going to identify our mission statements, right? So vision statements kaun si statements hoti hain? These are the statements that tells you what an organization wants to be. Organization aapki banna kya chahti hai, theek hai? For example, if there is an IT firm and that IT firm is wants to be the world IT solution leaders, ठीक है, ग्लोबल आईटी सोल्यूशन लीडर्स, तो ये क्या होगा? ये उनका विजन होगा, ठीक है? या अगर हम कहें कि जी लीडिंग आईटी सोल्यूशन विद मैक्सिमम मार्केट शेयर वर्ल्ड वाइड, सो दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है? आप कभी भी कंप्लीट 100% मार्केट शेयर अचीव नहीं कर सकते. या अगर कोई और एनजीओ है, एन एनजीओ वांट्स टू सेट अप देयर विजन दैट वी वांट्स टू इरेडिकेट द पॉवर्टी 100% फ्रॉम द सोसाइटी, सो वी कैन नॉट डू दैट, ठीक है? सो विजन स्टेटमेंट्स को हमने पहले भी डिस्कस किया था. दीज आर दो स्टेटमेंट्स दैट आर inspirational statements, that are motivational statements, that are inspiring statement, but these are impossible to achieve statements, ठीक है? But why we set so broad vision statements? Because these statements helps us in continuously achieving the mission of the organization, and continuously achieving what it wants to be, where organization wants to go, why the organization exists, ठीक है? So vision statements क्या define कर रहा होता है? It defines and it tells you what an organization wants to be. Mission statements आपका क्या define कर रहा होता है? It defines the basic, जी, so vision statement define करता है why an organization exists, ठीक है? बेसिकली जब भी आप अपना मिशन स्टेट कर रहे हो तो आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? व्हाट इट वांट्स टू अकम्प्लिश इन द लार्जर एनवायरनमेंट, ठीक है? और अपने विजन स्टेटमेंट के अंदर आपने ये बताना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस टारगेट मार्केट को केटर कर रही है, विद व्हाट नीड दे आर केटरिंग, एंड हाउ दे आर केटरिंग टू दैट पर्टिकुलर नीड, ठीक है? लेकिन हमने ये पहले भी डिस्कस किया था, आप कभी भी ये बात नहीं कहते अपने मिशन स्टेटमेंट के अंदर कि वी एग्जिस्ट टू प्रोवाइड दीज प्रोडक्ट्स टू आवर कस्टमर्स. रादर यू हैव टू क्लेम दैट वी एग्जिस्ट टू प्रोवाइड these needs of the consumers, ठीक है? So आपने क्या करना है? You need to work on the mission statement, and mission statement के अंदर आपने ये बताना है कि what product your what need your product is catering, what consumer base you are catering, and how you are satisfying those needs of the consumers, ठीक है? Like we discussed earlier कि Coca-Cola's mission statement is that they exist to refresh everyone who touches their business, ठीक है? They are nowhere claiming that they exist to provide fizzy drinks to the consumers, ठीक है? Why? Because आप जितना broad रखेंगे, जितना need based अपना mission statement रखेंगे, the more opportunity you have to expand your business in future, ठीक है? So you should not restrict your mission statements to be very product oriented, rather it should be need oriented. ठीक? So आपका जो mission statement है, it should be need oriented, and it should cater the needs. It should tell you why, what type of needs you are satisfying, how you are satisfying, and what type of target audience you are catering, ठीक है? So mission statements आपके बनते हैं from the vision statements, and vision statements are inspirational statements, and mission statements are basically statements that are catering to the present of your organization. ठीक? Any questions so far? जी, any No, ma'am. questions so far? No questions? ठीक है? Okay. So once we are done with setting up the company's vision and the mission statement, the next step is to draft
the objectives. And the next step is to work on the goals and objectives. ठीक है? So goals and objectives आपके कहाँ से branch out हो रहे हैं? सबसे पहले आपने बनाया mission vision statement. Then from vision statement you are going to work on your mission statement, and from mission statement you are going to work on your setting up your goals and objectives, right? Goals and objectives जब भी आप develop कर रहे हैं, the goals and objectives should always be your based on SMART acronym. ठीक है? SMART acronym के ऊपर हमारे goals and objectives based होने चाहिए, and by the goals and objective we means the target, the aims that we want to achieve. ठीक है? So ये आपके mission statement से ब्रांच आउट होंगे, और जब आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सेटअप हो रहे होते हैं तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए सेटअप होते हैं फॉर द or overall organization, for departmental goals and objectives, and the individual employee goals and objectives also. ठीक है? So आपके जब भी goals and objectives set किए जाने हैं, they should always be based on the SMART acronym. So what do you have any idea what SMART stands for? Can anyone tell me what SMART stands for? Miss, can I? जी It's sure. specific, measurable, Okay. attainable, Hmm. realistic, Good. and time. Yeah. Good. SMART acronym stands for specific, measurable, attainable, realistic, and time bound. ठीक है? For example, if I tell you that मैं दो ऑब्जेक्टिव स्टेट, tell me which one is the SMART objective. ठीक है? अगर मैं आपसे कहूँ कि we wants to achieve 40% market share in the next 10 years, in the next 3 years, is it SMART objective? He wants to achieve 40% market share in the next 3 months. Is it SMART? No, miss. No. Why? Because it's not attainable and it's not realistic. Okay. I mean, it's not attainable, yeah. And how do you identify attainable and realistic? Because 40% market share, gaining Okay, so 40% you market think share in that 3 months is like 3 months is not. It's like a really less span of time. Okay, so any other justification it is not a SMART statement? Anyone? Aisha, Azam, Daniel, Farjad. जैसा आपने बोला था कि इम्पॉसिबल होना चाहिए, मेरे जी। ख्याल से 40% जो है पॉसिबल है। अगर 100% बोलता तो वो फिर बात होती है इसकी। Okay, so you think it is a SMART objective, right? जी मिस। Okay, any other student? Is it SMART objective or not a SMART objective? Okay, now I'm giving you the second statement. We wants to achieve 40% market share from its current 20% in the next 3 years. Or sorry, next 3 months. So now, do you think it is a SMART objective or not? We wants to achieve 40% market share from its current 20% in the next 3 months. I guess it is smart. Okay, so the Yes, first one miss. was SMART or the second one? The second one. Yes, the second one is a SMART statement. Why? Because in the first one, we are saying we wants to achieve 40% market share in the next 3 months. We don't know what is our current scenario, how much we have to increase, and is it really feasible to increase, viable to increase or not? ठीक है? Because हमें अपनी current status पता नहीं है. लेकिन in the second statement, when we are claiming that we are already holding a 20% market share, and we have to achieve 20% more in order to make it 40% in the next 3 months. Okay, so this is a SMART objective. It is specific, it is precisely drafted. Okay, it is
measurable, we know we have 20%, and at the end of the 3 month we can see whether we have achieved the extra 20% to make it 40%, और पता है कितना गैप एग्जिस्ट कर रहा है और हमें कितना मेहनत करनी होगी in order to reach to the 40% market share, right? इसी तरीके से it is attainable. हमने 20% बढ़ाना है in the next 3 months, तो somehow to some extent अगर हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दें, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा दें, अपनी प्रमोशंस और मार्केटिंग बढ़ा दें, तो we can achieve this target. ठीक है, इसी तरीके से it is realistic, and at the same time it is also a time bound. We know that in the next 3 months we have to achieve this target. ठीक है, तो आपका जब भी ऑब्जेक्टिव्स ड्राफ्ट हो रहे हैं, दे शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन स्मार्ट एक्रोनिम. ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये कह रहे हैं कि जी वी वांट्स टू स्टडी 3 books of marketing in the 6-month semester, so this is not attainable, this is not realistic. ठीक, मेजरेबल तो हम कर सकते हैं, मेजरेबल भी नहीं है ये बेसिकली. ठीक है, सो वी नीड टू सेट वेरी स्पेसिफिक, वी नीड टू सेट वेरी measurable, attainable and realistic states or time bound statement. So we know we should have an idea कि हमने कितनी टाइम ड्यूरेशन के अंदर इस टारगेट को अचीव करना है. ठीक है, सो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, आपके डिपार्टमेंटल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी सेट हो रहे होते हैं, इंडिविजुअल एम्प्लॉय गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी सेट हो रहे होते हैं, टीम बेस्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव भी सेट हो रहे होते हैं. ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस मार्केटिंग डिपार्टमेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, देन एवरी ब्रांड मैनेजमेंट टीम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. ठीक है, जैसे यूनिलीवर ने अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट का गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट किया, उसके बाद Sunsilk, there is a different brand team is holding this Sunsilk brand, तो वो अपने goals and objectives set कर रहे होंगे. Then within the Sunsilk team जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, इन सब ये सब अपने अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे होंगे. ठीक है, सो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपके डिपार्टमेंटल वाइज भी सेट होंगे, टीम बेस्ड भी सेट हो रहे होंगे, और इंडिविजुअल एम्प्लॉय बेस्ड goals and objectives are also being set in the strategic planning process. ठीक है, and all the goals and objectives should always be based on SMART acronym. Now to achieve your vision, you work on your mission statement, and to achieve the mission statement you were working on setting up goals and objectives. Now how to achieve your goals and objectives? For that you need to work on your strategy and you need to work on tactics. ठीक है, अब स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? गेम प्लान, योर एक्शन प्लान. ठीक है, दिस इज योर, एंड टैक्टिक्स आर द मींस थ्रू व्हिच यू आर गोइंग टू अचीव योर स्ट्रेटजीज. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जी शान मसालास इज टारगेटिंग ऑल द प्रोफेशनल वुमेन. ठीक है, बिकॉज वो रेडीमेड इंस्टेंट कुकिंग हो जाती है शान मसाला से. सो अर्लियर शान मसाला वाज टारगेटिंग द प्रोफेशनल फीमेल्स. ठीक है, now they are planning to penetrate in the housewives also. ठीक है, अब इनके लिए this is the strategy, and for making this strategy into an implement action plan, ये क्या करेंगे कि they will have to look for a housewife. ठीक है, जिसको वो अपनी टीवीसी में दिखाएं या अपनी प्रमोशनल कैंपेन्स में दिखाएं, and that housewife is endorsing that these shan masalas are helping me in making my daily meals. ठीक है, it is quick, it is instant, and it makes delicious food. जी क्या बनाई कि from professional working woman you need to move towards the work housewives, and for that you need to you came up with a plan कि आप अपने टीवीसीज बनाएंगे, अपनी कैंपेन्स बनाएंगे, जिसमें आप एक आम उन खवातीन को लेंगे जो घरों में रहती हैं. ठीक है, और उनको यूज करते हुए एज अ सेलिब्रिटी एंडोर्सर, एज अ ब्रांड एम्बेसडर्स, आप उनसे अपनी ब्रांड को एंडोर्स करवाएंगे, सो दैट यू कैन पेनिट्रेट इनटू the other female segment also. So आपने करना है, you need to work, जब goals and objectives set हो गए तो आपने अपनी strategy designing करनी है, और उस strategy को action plan में convert करने के लिए you need to work on your tactics. How to achieve the strategy is basically tactics, and strategy क्या है? Strategy is the game plan, it is the action plan. ठीक, so far everything clear? Any question?
No, ma'am. Okay. Okay, now we're going to look at the third step of the strategic plan process is about designing a business portfolio. Okay, and here we're going to discuss how to design a business portfolio and develop growth strategies. So basically, what do you understand by the term business portfolio? Business portfolio को हम किस तरह define करते हैं? It is basically the collection of businesses and products that makes up the company. ठीक है, आपकी the total number of product the company is offering to its consumer, all of these product will combine to make up your business portfolio. ठीक है, for Unilever have three major product categories. They have home care products, they have food products, and they have personal health care hygiene products. ठीक है, so ये इन तीन major product category के अंदर जितनी भी products हैं, let's say they have 50 products under these three major product categories. So all of these 50 product will combine to make up the business portfolio of Unilever. ठीक, so business portfolio क्या है? It is basically the collection of products and businesses or the total number of products the company is offering. ठीक है, so it's basically a major activity in the strategic planning process. ठीक, जहां पर आप basically ये evaluate कर रहे होते हैं कि how the products and businesses makes up the company, how they are related to each other, and what you have to do with your different products, what type of growth expansion strategies you have to opt for your product, and what you have to do with your different SBUs. ठीक है, SBUs basically stands for strategic business unit, and I think we discussed this in the physical classrooms कि strategic को हम किस तरह define करते हैं. SBU, it stands for strategic business unit. It could be your department, it could be a division in the organization, it can be a single part in your portfolio. ठीक है, any product, any division, any department which have a separate budget, which have separate promotional activities or campaigns going on, which have a separate team, we call it an SBU. ठीक है, so जैसे like in P&G's portfolio, Head and Shoulder is an SBU. ठीक है, इसी तरीके से जो उनकी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, दैट इज आल्सो एन एसपीयू. इसी तरीके से अगर हम कॉन्ग्लोमरेट फर्म्स की बात करते हैं, जैसे एंग्रो पाकिस्तान, ठीक है, तो एंग्रो पाकिस्तान के अंदर जो उनके एंग्रो फूड्स है, दिस इज अनदर एसपीयू, एंड विद इन एंग्रो फूड जो ऑलपर्स सेल कर रहे हैं वो एल्पर्स मिल्क, दिस इज आल्सो एन SBU. ठीक है, फौजी फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो फौजी फाउंडेशन इटसेल्फ इज एन SBU. फिर फौजी फाउंडेशन के अंडर जो फौजी फाउंडेशन स्कूल आ रहा है, दिस इज अ सेपरेट SBU. ठीक है, देन दे हैव फौजी केमिकल्स. फौजी केमिकल्स एक सेपरेट SBU है, एंड फौजी केमिकल्स के अंदर जो उनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, दैट दोस प्रोडक्ट्स आर आल्सो देयर सेपरेट SBUs. ठीक है, सो पोर्टफोलियो एनालिसिस इज बेसिकली अ मेजर एक्टिविटी in designing and working on your business portfolios in the strategic planning process. ठीक, and business portfolio को हम किस तरह define करते हैं? The total number of product that companies are offering. ठीक है, so designing the business portfolio, companies need to look at their different SBUs and they need to see how they have to deal with their different SBUs in future. ठीक है, SBU को हमने किस तरह डिफाइन किया? इट कैन बी अ कंपनी डिवीजन, इट कैन बी अ प्रोडक्ट लाइन विद इन अ डिवीजन, एंड इट कैन बी अ सिंगल प्रोडक्ट और अ सिंगल ब्रांड इन योर पोर्टफोलियो. ठीक है, एनी डिवीजन, एनी डिपार्टमेंट, एनी प्रोडक्ट लाइन, एनी प्रोडक्ट दैट इज वर्किंग or functioning separately from the entire organization, we call it an SBU. ठीक है, so business portfolio एनालिसिस के अंदर सबसे पहला स्टेप आता है एनालाइजिंग द करंट बिजनेस पोर्टफोलियो. ठीक है, और करंट पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए फर्स्टली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर SBUs, देन यू हैव टू असेस द अट्रैक्टिवनेस ऑफ इट्स SBUs. ठीक है, एंड इन द stage you need to decide how much support each SBU deserves. ठीक है, attractiveness of SBU से क्या मतलब है हमारा? ठीक है, how do we define the attractiveness of its various SBUs?
Attractiveness means कि how much lucrative you see your SBU is. ठीक है, how much growth potential is there in the SBU. ठीक है, आप उसकी बेसिस के ऊपर डिफाइन करेंगे कि जी हमें इसके साथ एक्सपेंशन पे जाना है, या हमें इसे फेज आउट कर देना है, या हमें जो है इसको हार्वेस्ट करते रहना. We defined by looking at the attractiveness of your SBUs. ठीक है, so far everything clear to all of you? No Yes, ma'am. questions? Okay, now moving ahead. मिस जी मैम जी 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 रताज. मिस वाला प्लीज एक बार- एसबीयूज वाला रिपीट कर दें. जी जी जी. अच्छा, SBUs को हमने किस तरह डिफाइन किया? SBU कंपनी का डिवीजन भी हो सकता है, डिपार्टमेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट लाइन भी हो सकती है, और सिंगल प्रोडक्ट भी हो सकती है, या सिंगल ब्रांड भी हो सकता है. ठीक है, और हम किस तरह डिफाइन कर रहे हैं SBU को? वी आर डिफाइनिंग SBUs as any product, any brand, any division, any department who is functioning separately from the entire organization. In terms, they have their own budget, right? In terms, they have their own promotional campaigns, and they have a separate team to control or work on that particular division, product or product line or a brand. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ये है एक SBU जो इंटायरली सेपरेट चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग से, जिसका अपना बजट है, अपनी टीम है, अपनी प्रमोशंस हैं, वो सब सेपरेट करते हैं, तो हम उसको कह देते हैं दिस इज एन एसपीयू. ठीक है, तो एसपीयू कनॉल नूडल्स इज एन एसपीयू फॉर यूनिलीवर. ठीक है, इज एन फॉर यूनिलीवर. इसी तरीके से लाइफ बॉय सोप is another SBU. और जब हम बात कर रहे हैं that they are catering the 3 major product categories. ठीक है, so home care products is separate SBU, personal care product भी उनका एक separate SBU है. ठीक है, ये तो clear हो गया what is SBU? यस मिस, थैंक यू. यस मैम. ठीक, Uh, now मैम अब हम क्या करेंगे? अब जी मैम थोड़ा सा स्लो थोड़ा. okay okay थैंक यू. okay I'll try to be okay. अब हमने क्या करना है कि जब हम बिजनेस पोर्टफोलियो डिजाइनिंग के स्टेप में आए हैं, ठीक है, सो वी नीड टू वर्क ऑन एनालाइजिंग द करंट बिजनेस पोर्टफोलियो. सबसे पहले हम करंट सिचुएशन को असेस करते हैं, ठीक है, और फिर हम अपना फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन डिजाइन करते हैं. ऐसे ही करते हैं ना? ठीक है, कि वी फर्स्ट लुक एट द करंट सिचुएशन एंड देन वी डिजाइन द फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन. इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि हम अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को करंट असेसमेंट करेंगे पोर्टफोलियो की. ठीक, जब हम करंट असेसमेंट कर रहे हैं, वी आर डूइंग द एनालिसिस ऑफ द करंट बिजनेस पोर्टफोलियो, तो हम उसमें 3 स्टेप्स. सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे अपने, ठीक है. सेकंड स्टेज पे हम उन एसपीयूज की अट्रैक्टिवनेस को देखेंगे. ठीक है, अट्रैक्टिवनेस इन टर्म्स के हाउ अट्रैक्टिव these SBUs are, प्रॉफिटेबल हैं, ल्यूक्रेटिव हैं, ग्रोथ पोटेंशियल है इसमें या नहीं है. ठीक है, अगर को तो हमें लगता है कि जी ये प्रॉफिटेबल है, ग्रोथ पोटेंशियल है, ल्यूक्रेटिव है, और इसके ऊपर हमें मेहनत करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए और एक्सपेंशन पे लेके जाना चाहिए. ठीक है, एक सिनेरियो हो सकता है. दूसरा सिनेरियो क्या है कि हमने जैसे फॉर इंस्टेंस पीटीसीएल ने अपना पोर्टफोलियो एनालिसिस शुरू किया, ठीक है, एंड दे आइडेंटिफाइड कि जो उनका लैंडलाइन बिजनेस है ये कुछ अरसे में जाके अपनी अट्रैक्टिवनेस कम हो जाएगी इसकी. ठीक है, व्हाई? बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस, और जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उतनी तेजी से जो है वो नई नई इनोवेशंस मार्केट में आ रही हैं. तो लैंडलाइन की टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग ऑब्सोलीट, यानी दिस पर्टिकुलर एसबीयू इज लूजिंग इट्स अट्रैक्टिवनेस. ना ये प्रॉफिटेबल रहेगा फ्यूचर में, ना ही ये ल्यूक्रेटिव रहेगा, ना ही ये जो है हमें ग्रोथ देगा, ना ही हमें प्रॉफिट लाके देगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो रही है एंड द पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स मोर स्मार्ट गैजेट्स, पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स मोर VoIP सॉफ्टवेयर और एप्स,
to communicate and coordinate. ठीक है, so हमने current assessment कर लिया PTCL ने, and they identified that we need to design the portfolio which is the requirement of the future. ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, जो इनका Hello PTCL का विजन है, that Hello PTCL vision is working on upgrading the portfolio. It is working on adding the innovation and the latest technologies into their portfolio, incorporating the latest innovative product into the portfolio. ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, they are involved in the strategic planning process. अपने business portfolio को analyze करके future line of action decide करना शुरू कर दिया. ठीक है, so first step पे हम करेंगे identify अपने strategic business units को, फिर करेंगे उनकी अट्रैक्टिवनेस को. ठीक है, कि ये प्रॉफिटेबल होंगे या नहीं होंगे, ये मार्केट या प्रोडक्ट डाउन जा रही है या हाई जा रही है, इसकी डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है, हम ये सारी चीजें देखेंगे इन असेसिंग द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द SBUs. ठीक है, इन द थर्ड स्टेप वी विल बी डिसाइडिंग how much support each SBU deserves. ठीक है, जैसे PTCL ने देखा कि जी लैंडलाइन बिजनेस विल सून गोइंग टू बी एन ऑब्सोलीट बिजनेस, तो उन्हें समझ में आ गया कि जी कितनी सपोर्ट देनी चाहिए इस बिजनेस को, हमें इससे शिफ्ट होना चाहिए टुवर्ड्स इंटरनेट सर्विसेज, towards VoIP softwares, towards more smartphones, towards more smart TVs. ठीक है, ताकि हम फ्यूचर नीड्स को केटर कर सके और फ्यूचर के लिहाज से अपने पोर्टफोलियो को जो है अपग्रेड कर सके, so that we see ourselves in the future. ठीक है, so these are the three steps. They identified their SBUs, then they assessed the attractiveness of their various SBUs, and then finally they decide how much support each SBU deserves. ठीक है, so जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि हर SBU को कितनी सपोर्ट चाहिए, how much investments your SBU needs, whether you need to keep this SBU within the portfolio or you need to face that portfolio, ये डिसीजन आप ले लेंगे करंट असेसमेंट करके. ठीक है, तो बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर दो बेसिक स्टेप्स हैं, करंट पोर्टफोलियो एनालिसिस जो भी हमने देखा. ठीक है, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज द फ्यूचर पोर्टफोलियो एनालिसिस. तो करंट पोर्टफोलियो एनालिसिस में आपने एनालाइज कर लिया अपने करंट बिजनेसेस को, उनकी अट्रैक्टिवनेस को एनालाइज कर लिया, एंड कीपिंग इन व्यू देयर अट्रैक्टिवनेस यू डिसाइड कि हाउ व्हाट यू हैव टू डू विद योर SBUs. ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 पे जब हम आ रहे हैं, दैट इज द फ्यूचर पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड डिजाइनिंग. वहां पर हम क्या करेंगे, वी विल बी वर्किंग ऑन शेपिंग अप कंपनीज फ्यूचर पोर्टफोलियो एनालिसिस बाय डेवलपिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज. ठीक है, हाउ वी गोइंग टू डू दैट. करंट बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा BCG मैट्रिक्स को. ठीक है, BCG मैट्रिक्स इज बेसिकली Boston Consultancy Group matrix. ठीक है, and this Boston Consultancy Group matrix will going to help you in placing your different SBUs so that you can understand कि आपका SBU attractive है या नहीं है. ठीक है, अभी भी हम फर्स्ट स्टेप पर ही हैं बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस के, एंड वी आर now what we are doing, we are trying to use a BCG matrix, that is Boston Consultancy Group matrix, और उस matrix के ऊपर हम क्या करेंगे, we're going to position our products onto the grid or onto the matrix, ठीक है, to see के what we have to do with our different SBUs or with different products. ठीक, अच्छा, ये ग्रिड के अंदर दो बेसिक डायमेंशंस हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हमने 4 प्रोडक्ट टाइप्स को डिफाइन किया हुआ है. ठीक है, एक तरफ आपको नजर आ रहा है मार्केट ग्रोथ रेट. ठीक है, एंड ऑन द अदर एक्सिस यू आर सीइंग रिलेटिव मार्केट शेयर. ठीक, मार्केट ग्रोथ रेट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, मार्केट ग्रोथ रेट को हम डिफाइन कर रहे हैं कि जी आपकी प्रोडक्ट जिस इंडस्ट्री में है वो इंडस्ट्री ग्रोइंग है या नहीं है. ठीक है, the industry in which your product is your industry growing or not. ठीक है, अगर तो इंडस्ट्री ग्रोइंग होगी, ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, और अगर इंडस्ट्री नहीं है ग्रोइंग तो फिर आप क्या करेंगे, आप हार्वेस्ट करेंगे. ठीक है, ये भी मैं आगे डिफाइन करूंगी आप लोगों को.
सो पहली डायमेंशन क्या है? मार्केट ग्रोथ रेट, दैट इज टू सी हाउ मच अट्रैक्टिव द इंडस्ट्री इज, ठीक है, टू सी what kind of potential the industry in which your product is holds, ठीक है, in the market. Next dimension is the relative market share. ठीक, अब relative market share को हम किस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि as compared to the competitors आपकी प्रोडक्ट कितना मार्केट शेयर होल्ड किए हुए हैं, ठीक, as compared to the competitors how much market share your product is holding in the market. ठीक, अब हम क्या डिफाइन करेंगे इन दो बेसिस के ऊपर, दैट इज मार्केट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव मार्केट शेयर. वी हैव established and identified 4 प्रोडक्ट कैटेगरीज जिसके अंदर हम अपने SBUs को प्लेस करेंगे, ठीक है. सो रिलेटिव मार्केट शेयर में आप हम देख रहे हैं हाई मार्केट रिलेटिव मार्केट शेयर एंड लो रिलेटिव मार्केट शेयर, एंड likewise in market growth rate we have low market growth rate and high market growth rate. ठीक है, सबसे पहली प्रोडक्ट है डॉग प्रोडक्ट. ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस मैट्रिक्स एंड अकॉर्डिंग टू दिस ग्रिड अगर हम देखें तो डॉग प्रोडक्ट इज होल्डिंग लो रिलेटिव मार्केट शेयर एंड लो मार्केट ग्रोथ रेट. ठीक, ये नाम भी बड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं प्रोडक्ट्स के. लो मार्केट ग्रोथ रेट होल्ड कर रहा है डॉग एंड लो मार्केट रिलेटिव मार्केट शेयर है. ठीक है, दैट मीन्स कि आपकी प्रोडक्ट जिस इंडस्ट्री में है वो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है. ठीक है, देयर इज नो पोटेंशियल, देयर इज नो अट्रैक्टिवनेस इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एंड एट द सेम टाइम आपकी प्रोडक्ट एज कंपेयर टू द कंपेटिटर्स सबसे कम मार्केट शेयर लिए हुए इंडस्ट्री का. ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं? दिस इज अ डॉग प्रोडक्ट. ठीक, सो व्हाट डू यू थिंक कि डॉग प्रोडक्ट इज लो मार्केट ग्रोथ रेट एंड लो रिलेटिव मार्केट शेयर, तो इसके साथ क्या करना चाहिए? हमें इस पे इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नो मैम. क्यों नहीं करनी No. चाहिए? यस, राइट. इनके दोनों ही मैम लो हैं, ना हमें फायदा हो रहा है, जी, हमें मतलब इसलिए नहीं करनी चाहिए. बिल्कुल नुकसान ही हो बिल्कुल, रहा है. गुड गुड गुड. ठीक है, तो इसमें नुकसान क्या हमें हो रहा है कि जिस इंडस्ट्री में एक तो वो इंडस्ट्री नहीं ग्रो कर रही, दूसरा हमारे पास सबसे कम मार्केट शेयर है, तो हमें इन्वेस्ट इसको जरूरत नहीं है. रादर व्हाट वी हैव टू डू हियर इज कि हम या तो इसको लेट इट डाई इट्स नेचुरल डेथ कि ये हो जितना मार्केट शेयर जैसे लेते चलती रहे आहिस्ता आहिस्ता खुद ही फेज आउट हो जाए मार्केट से, या हम इसको मार्केट से कंप्लीटली डिसकंटिन्यू कर दें अपने पोर्टफोलियो के अंदर. ठीक है, सो हमने क्या करना है? इसको डाइवेस्ट कर देना है, इसको बाहर कर देना है पोर्टफोलियो से, क्योंकि ये हमारे ऊपर बर्डन है. ठीक, बर्डन क्यों है? क्योंकि ये हमें कोई प्रॉफिट नहीं दे रही, कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट करके दे रही, ये सिर्फ और सिर्फ जो है हमसे कह रही है कि जी इन्वेस्टमेंट करते रहो, और वो इन्वेस्टमेंट्स भी हमारी सारी वेस्ट जा रही हैं क्योंकि जो जिस इंडस्ट्री के अंदर ये प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्री ग्रोइंग ही नहीं है. ठीक, तो दिस इज डॉग प्रोडक्ट. डॉग प्रोडक्ट से मैम आपने रिलेटिव मार्केट शेयर का क्या बताया था? कंपैटिटर्स से देखना है, कंपेयर करना है. जी 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 जी, relative market share is कि how much market share your product holds as compared to the competitors. ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम सेलुलर सर्विस इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, सो जैज इज होल्डिंग द हाईएस्ट मार्केट शेयर. जैज के बाद यूफोन इज द मार्केट फॉलोअर, वो सेकंड हाईएस्ट मार्केट शेयर के ऊपर है, और फिर उसके बाद जितने भी सेलुलर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो बाद में आते हैं. ठीक है, सो हमने जब इंडस्ट्री का कंपैरेटिव एनालिसिस किया तो जैस ने कहा कि जी is holding the highest market share as compared to the competitors. This is relative market share. ठीक, कि as compared to the competitors आप कितना market share hold किए हुए हैं market का. Clear? Yes मैम. ठीक, ओके. सो डॉग प्रोडक्ट्स आपकी कहाँ जाएंगी? अब आई डोंट हैव द मार्कर और द बोर्ड एट द मोमेंट. तो डॉग प्रोडक्ट के लिए अगर हम एरो क्रिएट करना चाहें तो हम इसको एरो करेंगे टूवर्ड्स द राइट साइड. ठीक है, कि वी नीड टू मेक phase it out.
डॉग के बाद आती हैं क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट्स को व्हाई दे आर कॉल्ड क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट्स एंड दे आर आल्सो नोन एज प्रॉब्लम चाइल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इनको हम प्रॉब्लम चाइल्ड भी कहते हैं और इनको हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। व्हाई वी आर सेइंग कॉलिंग देम क्वेश्चन प्रॉब्लम चाइल्ड और क्वेश्चन मार्क? बिकॉज दे हैव नो डोमिनेंट और प्रोमिनेंट पोजीशन इन द पोर्टफोलियो। ठीक, जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं ये, वहां मार्केट ग्रोथ रेट तो हाई है लेकिन रिलेटिव मार्केट शेयर के अंदर इनका मार्केट शेयर बहुत लो है। ठीक, सो आप दो डॉट्स देख रहे हैं इसमें, यहाँ पे देयर यू कैन सी द ग्रीन ऑन दिस इन दिस ग्रिड। ठीक है, तो ये जो डॉग के ऊपर जितना बड़ा सर्कल आपको नजर आ रहा है, जितना छोटा सर्कल नजर आ रहा है, ये आपको क्या सिग्निफाई कर रहा है कि जितना स्ट्रॉन्ग डॉग होगा उसको सबसे पहले डाइवेस्ट करना है, एंड द स्मॉल सर्कल दैट इज नियर टू द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा पोटेंशियल है कि अगर हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें तो इट माइट गो इनटू द क्वेश्चन मार्क एरिया। ठीक है, लेकिन वहां पर भी बहुत रिस्की डिसीजन होगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क इटसेल्फ हैज नो डोमिनेंट पोजीशन। ठीक है, सो जो क्वेश्चन मार्क के अंदर आपको 3 सर्कल्स नजर आ रहे हैं, वन इज टुवर्ड्स द राइट साइड। ठीक है, उसको हम क्या देखेंगे, दिस इज अ वीक क्वेश्चन मार्क। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी टू मूव इट टुवर्ड्स द स्टार कैटेगरी। लेकिन एक और है सर्कल दैट इज नियर द स्टार कैटेगरी। ठीक है, बट इट इज स्लाइड वेरी शो नहीं हो स्मॉल रहा इन तकरीबन, बहुत साइज। टाइम हो गया। जी, स्लाइड क्या शो हो रहा नहीं है? हो रही है, स्लाइड्स। आ, मुझे आई एम सॉरी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। मैसेज में अगर आप लिख दें तो आई कैन रीड इट फ्रॉम देयर। मैम ही इज सेइंग कि स्लाइड शो नहीं हो रही है। अच्छा, स्लाइड शो नहीं हो रही हैं तो मे बी थोड़ा कोई इंटरनेट इशू होगा, थोड़ा सा सर्वर स्लो होगा आपकी तरफ। बाकियों को हो रही है स्लाइड शो? यस मैम। ठीक, तो वेट कर लें। आई थिंक लियाकत यस ने मैम। बोला था। ठीक है, सो लियाकत वेट कर लें, मैं भी थोड़ी देर में आपके पास आ जाएंगी स्लाइड्स। अदरवाइज रिकॉर्डेड लेक्चर डाउनलोड कर लिएगा, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, एंड आई विल अपलोड दी स्लाइड्स ऑल्सो। सो जो ये आपका क्वेश्चन, द स्मॉल सर्कल दैट इज नियर द स्टार, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन मार्क एंड इट हैज द पोटेंशियल कि अगर हम इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट्स करें तो ये स्टार की तरफ जा सकता है। ठीक है, सो क्वेश्चन मार्क्स को हमने क्या करना है, अगर इफ इट्स अ वीक क्वेश्चन मार्क देन फेज इट आउट, डोंट डू अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, एंड इफ इट्स अ strong question, do the investments because it has a potential कि ये स्टार में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, सो क्वेश्चन मार्क्स को हम प्रॉब्लम चाइल्ड भी कहते हैं, एंड व्हाई वी कॉल देम क्वेश्चन मार्क और प्रॉब्लम चाइल्ड, बिकॉज दे हैव नो डोमिनेंट पोजीशन और प्रोमिनेंट पोजीशन। इनकी अपनी पोजीशन क्लियर नहीं है, दे डोंट नो वेयर दे आर स्टैंडिंग इन द पोर्टफोलियो। ठीक है, उसके बाद आती है स्टार प्रोडक्ट्स। स्टार प्रोडक्ट्स आर दोस प्रोडक्ट्स हु हैव हाई मार्केट ग्रोथ रेट एंड हाई रिलेटिव मार्केट शेयर। यानी जिस इंडस्ट्री के अंदर है वो इंडस्ट्री भी बहुत ग्रोइंग है और सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्केट शेयर एज कंपेयर टू द कंपेटिटर्स द स्टार प्रोडक्ट हैव। ठीक है, सो जब हम स्टार प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो स्टार प्रोडक्ट्स आर द लीडर्स ऑफ हाई ग्रोथ इंडस्ट्री and star product needs the highest investment in all 4 types of the products. ठीक है, जो SBU आपका स्टार प्रोडक्ट की कैटेगरी में आ रहा है इसको सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। क्यों इन्वेस्टमेंट्स चाहिए? बिकॉज दे आर द लीडर्स ऑफ द हाई ग्रोथ इंडस्ट्री, एंड व्हेन दे आर द लीडर्स ऑफ द हाई ग्रोथ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री ग्रोइंग है, ल्यूक्रेटिव है, अट्रैक्टिव है, तो वहां नए प्लेयर्स भी एंटर होते रहेंगे, कंपेटिटर्स भी एंटर होते रहेंगे। ठीक है, तो अपनी पोजीशन को रिटेन रखने के लिए, अपनी पोजीशन को सस्टेन रखने के लिए आपको हाई इन्वेस्टमेंट्स करनी होगी। ठीक, this is a star product. They are the leaders of the high growth industry and they need highest investments always because they need to retain and sustain the position that they have gained in the portfolio. ठीक है, उसके बाद कैश काउ प्रोडक्ट्स। ठीक,
कैश काउ लो मार्केट ग्रोथ रेट बट हाई रिलेटिव मार्केट शेयर, यानी जिस इंडस्ट्री के अंदर ये है वो इंडस्ट्री तो डाउनवर्ड स्लोप शो कर रही है, लेकिन जितनी भी इंडस्ट्री बची है उसमें मैक्सिमम मार्केट शेयर आपकी कैश काउ प्रोडक्ट ने होल्ड किया हुआ है। यानी कि अगर हम इन्हें कैश काउ क्यों कह रहे हैं, व्हाई दे आर कॉल्ड कैश काउ, बिकॉज कंपनी या मार्केटियर इसे देखता है पैसा बनाने वाली मशीन। ठीक, ये कंपनी के लिए पैसा बनाने वाली मशीन है, बिकॉज दे डोंट नीड इन्वेस्टमेंट्स, इन्हें इन्वेस्टमेंट की जरूरत, ग्रोइंग नहीं है तो कोई नया कंपेटिटर आ ही नहीं रहा मार्केट के अंदर, तो जब कोई नया कंपेटिटर आ ही नहीं रहा, सो यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑन योर मार्केटिंग, ऑन योर प्रमोशंस, बिकॉज जो आपकी ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड मार्केट शेयर है उसी से आपको बहुत सारे रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स जनरेट मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जो कैश काउ प्रोडक्ट्स हैं, इन कैश काउ प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं दी आर द लीडर्स ऑफ लो ग्रोथ इंडस्ट्री। स्टार प्रोडक्ट हाई ग्रोथ इंडस्ट्री की लीडर है, कैश काउस आर द लीडर्स ऑफ द लो ग्रोथ इंडस्ट्री। ठीक है, एंड द मनी that is being generated, the revenue and the profit that is being generated from these cash cow products, the company invests that revenue on paying up their bills and paying up their all the additional charges और cost जो भी आ रही है वो सारी चीजें इस कैश काउ से कवर की जाती हैं। ठीक है, so these are the four quadrants in product market in Boston Consultancy Group matrix, that is BCG matrix। ठीक है, जहां पर हमारे पास दो बेसिक डायमेंशंस है, मार्केट ग्रोथ रेट and relative market share, and on the basis of these two important dimensions we have identified 4 product categories जहाँ पे हम अपने SBUs को place करेंगे, और उनको place करने के बाद we're going to see कि what line of action we have to take for our different SBUs। ठीक है, strong cash cow, weak cash cow, no need to invest, we need to हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो फसल लगाता है किसान, उस फसल को आहिस्ता आहिस्ता वो रीप करता रहता है और उससे फायदा लेता रहता है। इसी तरीके से जो आपकी कैश काउ प्रोडक्ट ने एक मार्केट शेयर होल्ड कर लिया है लो ग्रोथ इंडस्ट्री का, आप सिर्फ उससे बेटर रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स को एंजॉय करते रहें, आपको इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत नहीं है। सो व्हाट यू आर डूइंग, आपकी स्ट्रेटजी क्या है फॉर क्वेश्चन मार्क्स, यू नीड टू हार्वेस्ट। फॉर डॉग, either a weak or a strong dog, no need of investments, just you need to divest them, you need to phase them out from your portfolio। ठीक, strong question mark invest, question mark divest, उसको phase, and strong और weak stars invest। ठीक, तो ये 4 स्ट्रेटजीज होती हैं आपकी, इन्वेस्ट, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट। जी मैम ये इन्वेस्ट डाइवेस्ट ये सारी फिर से रिपीट करिएगा। जी 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 मैं बता रही हूँ। आपने क्या करना है कि once you have placed all your current product portfolios product onto this grid, ठीक है, अब आप इस तरह के आपने इसको इन्वेस्ट करना है इस एसबीओ में, या इस एसबीओ को डाइवेस्ट कर देना है, या इस एसबीओ को हार्वेस्ट करना है, या इस एसबीओ को होल्ड करके रखना है। ठीक है, स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं उसको आपने क्या करना है, डाइवेस्ट करना है। डाइवेस्ट का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट्स ना करें और उसे छोड़ दें, उसको उसके हाल पे छोड़ दें, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा मार्केट से। ठीक, आइदर तो उसको बिल्कुल ही आप कंप्लीटली खत्म कर दें, खुद ही से डिसकंटिन्यू कर दें, या उसको छोड़ दें, वो जैसे चल रहा है चलता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही मार्केट से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो डाइवर्स्ट स्ट्रेटजी क्या कहती है, discontinue the product, don't invest in the product, or let it die its natural death। ठीक, होल्ड स्ट्रेटजी जैसे यहाँ पर जो हमें जो सेंटर में एक क्वेश्चन मार्क के एक सर्कल नजर आ रहा है, एसपीयू नजर आ रहा है, इसको हम कहेंगे कि इसको हमने होल्ड करके रखना है, और हमने सिचुएशन को ऑब्जर्व करके देखना है कि जी अगर हमें लगता है कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके ये स्टार में जा सकता है तो हम इसे इन्वेस्ट करेंगे, और अगर हमें लगता है कि ये नहीं जा सकता स्टार की तरफ तो हम इसे फिर डाइवेस्ट कर देंगे। ठीक है, सो होल्ड स्ट्रेटजी क्या कहती है, इट सेज वेट and watch the scenario and then take the action। ठीक, ओके
ये कंजा, ये जो डॉट्स हैं and all the circles or the dots that are placed in this grid, ठीक है, ये बेसिकली डिफरेंट SBUs हैं, यानी हमारी प्रोडक्ट्स हैं। जब हम करंट पोर्टफोलियो थे तो हम उनका मार्केट शेयर देखते हुए, मार्केट परफॉर्मेंस देखते हुए, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस देखते हुए उनको प्लेस कर रहे हैं इन दीज 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। और ये डॉट्स हमें क्या बता रहे हैं? ये हमें ये बता रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन मार्क है, जितना बड़ा होगा तो वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा और जितना छोटा होगा वो उतना वीक होगा, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग और वीक स्टार, क्वेश्चन मार्क या कैश का हमें ये बताएंगी कि हमने इनके साथ किस तरीके का लाइन ऑफ एक्शन लेना है, हमें कौन सी स्ट्रेटजी को यूज करना है। तो हमने अभी डिस्कस की थी 4 स्ट्रेटजीज हैं दैट मार्केटियर्स सी एंड डिसाइड on the basis of these current products and SBUs. Hold strategy क्या कहती है? Wait and watch. ठीक, आप पहले सिनेरियो को देखें, सिचुएशन को समझें, बिजनेस ट्रेंड्स को देखें और फिर डिसाइड करें कि इन्वेस्ट करना है या इसको डाइवेस्ट कर देना है, ठीक। नंबर 2 स्ट्रेटजी इज डाइवेस्ट। ये जो डॉग के अंदर डॉट्स पड़े हुए हैं, ये क्या है? ये वो सारे डॉट प्रोडक्ट्स हैं जो लो ग्रोथ इंडस्ट्री के अंदर है और मार्केट शेयर भी होल्ड नहीं कर रहे हैं, यानी बस ये चल रही हैं और कोई भी टाइम आएगा दे विल डाई देयर नेचुरल डेथ, ठीक है। सो हमें इनके ऊपर क्या करना है? हमें इनको डाइवेस्ट करना है, ठीक। इसका मतलब क्या है कि हम इनको छोड़, और जैसे जैसे टाइम आएगा ये खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी, ठीक। यू डोंट नीड टू डू इन्वेस्टमेंट्स। 4 मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है, डाइवेस्ट, होल्ड, हार्वेस्ट एंड इन्वेस्ट। अच्छा, स्टार प्रोडक्ट के अंदर आपको 2 सर्कल्स नजर आ रहे हैं, एक थोड़ा छोटा है और एक थोड़ा सा बड़ा डॉट है, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या क्या बता रहे हैं आपको? क्योंकि ग्रोथ बहुत है, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रोइंग है, competitors हैं, this will going to stay longer in the market। तो यहाँ पर आपने क्या करना है? आपने इन्वेस्ट करते रहना है। क्यों? क्योंकि आपकी हाईएस्ट मार्केट शेयर है और उस मार्केट शेयर को रिटेन और सस्टेन रखने के लिए आपने इसको इन्वेस्टमेंट्स करते रहना है, ठीक। कैश काउ के ऊपर आपको 2 सर्कल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है? आपने हार्वेस्ट करना है और होल्ड करके रखना है। 2 स्ट्रेटजीज चलेंगी। हार्वेस्ट का मतलब ये है कि आप आहिस्ता 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 आप लेयर बाय लेयर अपना प्रॉफिट को रीप करते रहें, क्योंकि वहां पर कोई नया कंपेटिटर नहीं आ रहा, प्रमोशंस पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आपको खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है कैश काउ के ऊपर। द कैश काउ इज गिविंग यू प्रॉफिट्स, इट इज गिविंग यू रेवेन्यूज एंड एंजॉय दोस रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स बाय हार्वेस्टिंग इट, ठीक। और होल्ड करके रखें, मतलब जो भी मार्केट में आपकी पोजीशन बनी हुई है उसे सस्टेन और होल्ड करके रखना है आपने, ठीक। So these are the 4 strategies that marketeers identify after placing the product into the BCG matrix। आपका current portfolio analysis यहाँ पे हो गया है complete, ठीक। Any question? नो मैम। No question? क्लास में कितना टाइम रह गया है? 6 minutes. 6 मिनट्स हैं, ओके। अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं तो हम क्विकली ये प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं और फिर उसके बाद वाइंड अप कर देंगे। नाउ प्रॉब्लम्स विद दिस BCG मैट्रिक्स, ठीक है। BCG मैट्रिक्स अगर हम कर रहे हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट to measuring their market share and growth, ठीक है। आपने नोट किया होगा कि while explaining this whole matrix मैंने आपको किसी भी ब्रांड की एग्जांपल नहीं दी, ठीक है। क्यों नहीं दी? क्योंकि ये कंपनीज का कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है कि हाउ देयर डिफरेंट ब्रांड्स आर परफॉर्मिंग इन द मार्केट, कौन प्रॉफिट लाके दे रहा है, कौन उनको प्रॉफिट नहीं जनरेट करके दे रहा, किसकी क्या परफॉर्मेंस है, किसका कितना मार्केट शेयर है। दिस इज द कंपनीज कॉन्फिडेंशियल डेटा, ठीक है। और जब कंपनी का अपना डेटा होता है और उसमें से कंपनी जब मार्केट ग्रोथ रेट देख रही है, मार्केट अट्रैक्टिवनेस देख रही है, तो समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन कि एसबीयू का मार्केट शेयर को हम किस तरह मेजर करें या कंपनी इंडस्ट्री की ग्रोथ को किस तरह मेजर किया जाए, ठीक है। देयर इज नो डिफाइंड क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग मार्केट शेयर
and growth rate. Secondly, this is a time consuming task and expensive task to do. ठीक है, and it is only focusing on your current businesses. यहाँ पर आपको ये नहीं बता रहा है कोई कुछ भी कि जी फ्यूचर प्लानिंग किस तरीके से की जाए. ठीक है, ये तो हमने खुद से आइडेंटिफाई करी कि जी डाइवेस्ट, होल्ड, हार्वेस्ट और इन्वेस्ट किया जाए. लेकिन अदर देन दिस देयर इज नो indication of doing future planning in this portfolio. It is only giving you the situation or the analysis of the current market, of the current business, and how much market share your current SBUs are holding into your business portfolio or into the market. ठीक है, so ये basic difficulties हैं, problems हैं इस BCG metrics की, but still marketeers are using this BCG metrics to do the current portfolio analysis, and for the future portfolio analysis companies किसके ऊपर जाती हैं? They go for product market expansion grid. ठीक, अब ये प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड आपको बता रही होगी कि जी करंट पोर्टफोलियो एनालिसिस हो चुका है, अब हाउ यू हैव टू टेक एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज और एक्सपेंशन स्टेप्स फॉर योर पोर्टफोलियो, फॉर योर SBUs. ठीक है, तो इस ग्रिड को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे क्योंकि दिस विल गोइंग टू टेक टाइम इन एक्सप्लेनेशन. ठीक है, प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड, हम इसको एंड्स ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं बिकॉज दिस product market expansion grid was proposed by Igor Enzov. He was a marketing strategist. उन्होंने present किया था, तो sometimes it is designated with the name of the person who designed it, या हम इसको product market expansion grid भी कह सकते हैं. ठीक है, जिस तरह BCG मैट्रिक्स में हमने 4 product quadrants define किए थे on the basis of market growth rate and relative market share, यहाँ पर हम 4 expansion strategies को identify कर रहे हैं on the basis of the existing markets or new markets, or on the basis of existing products and new products. ठीक है, so we will discuss this product market expansion grid in the next class. We are keeping it till here today. अगर किसी का कोई भी question है तो just let me know. अटेंडेंस में आपकी यहाँ से क्लास की अटेंडेंस से डाउनलोड कर रही हूँ. ठीक है, तो मेरे पास एक्सेल शीट आ जाएगी एंड आई विल गेट एन आइडिया कि कौन कौन क्लास, किस किसने क्लास अटेंड की हुई है. So any question from anyone? No No, ma'am. questions? चलें, we are wrapping up today's class and hopefully we'll see you on Thursday. Friday वाली क्लास हमारी Thursday को शिफ्ट हो गई है. ठीक, और फ्राइडे आप लोगों का नो क्लास डे हो गया है रमजानों में. नो मैम, रमजानों से नहीं है, वो ईद के बाद होगा इम्प्लीमेंट. नहीं, अभी भी इम्प्लीमेंटेड है. मैम मगर हमने कंफर्म किया था तो उन्होंने बोला किससे था कि नहीं, कंफर्म ईद किया के था आपने? ताबिश, सर ताबिश से. सर ताबिश से किया था. अच्छा चले, मैं रिकन्फर्म जी. कर लूंगी. इन माय इंफॉर्मेशन इट इज फॉर द रमजान कि आपकी जो फ्राइडे वाली क्लास है उसको थर्सडे को शिफ्ट किया हुआ है.